So I have started the recording. I will upload the recording file on YouTube. Okay, I will share the private playlist. So introduction parts तो हो गया complete. Okay. So this is the course introduction. The course is divided in different level. The first is essential Excel. So in the essential Excel, I will start from scratch. So no matter if you are using Excel first time. Okay. Then we will move to mastering Excel formula and functions. Okay. We will learn Excel functions, formulas, how to mix them, how to use in real problems. Then analysis and reporting. We will learn tools used to analyze our data and terms used in reporting department and how many reports you can use with the same data. Okay. Then AI and automation. In the AI and automation, we will learn how to use artificial intelligence, Microsoft artificial intelligence in Excel itself. It is not necessary कि आज की डेट में if you don't know the Excel formula, है ना, then you can't use them. You can usually type in ChatGPT, suggest me how to write VLOOKUP syntax, or you can provide the data. ChatGPT itself will write the functions. Okay. We will learn inbuilt artificial intelligence in Microsoft. Automation, how to use Power Query add-in in Excel to automate your reports. Like on the daily basis, you receive a report, you know, and after 15 days, you have to merge all these reports. So this is the manual process. You will open the first file, then copy it, paste in your master data, then second file. How to automate this thing? By a single click, all reports will be consolidated, you know, without manual intervention. Then we will move to business intelligence and presentation. We will learn what is dashboard, what is the Excel dashboard, how to develop Excel dashboard, and Power BI tool. Okay, Power BI is a tool for business intelligence, and in Power BI we learn how to develop dashboard. What are the features available in Power BI? Okay, and the last one is project work. 2 sessions we will run on project work. Okay. Modern Excel with BI, AI and big data support. एक कॉन्सेप्ट है एक्सेल के बारे में. इफ आई आस्क डू यू नो एक्सेल, तो आंसर हमेशा ऐसे ही होता है. कोई नहीं बोलता है कि आई डोंट नो एक्सेल, है ना. सबको एक्सेल तो पता है ना. कितना पता है ये डिपेंड करता है उसकी जरूरत कितनी है. इफ अ पर्सन इज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर तो उसको उतना ही पता होगा, है ना. इफ पर्सन इज अ मैनेजर उसको ज़्यादा पता होगा. बट एक्सेल को ना डिफरेंट कॉलेजेस में या ऑफिस में मैं जाता हूँ तो एक्सेल के बारे में सबको ये लगता है कि एक्सेल के पास ना वो पावर नहीं है जितना वो अदर सॉफ्टवेयर्स के पास है ना. एक्सेल बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकता. देयर नो सपोर्ट ऑफ एआई. बीआई टर्म से कितने लोग फैमिलियर हैं? बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस. इन्होंने डिफाइन बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस तो पता है, इंटेलिजेंस ही पता है. उसको एक्सेल के या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कंपनी के पर्सपेक्टिव में व्हाट इज द बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, जो हमारे बिजनेस के डेटा को, है ना, इनसाइट करे एंड कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे जिससे हमें बिजनेस में हमें एक ट्रांसपेरेंट मैटर पे सारा इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना. वी कैन से एक्सेल इज द फर्स्ट बीआई टूल. एक्सेल इज द फर्स्ट बीआई टूल. एक्सेल कब आया था? more than 30 years पहले. एक्सेल इज द फर्स्ट BI tool and Microsoft offers lots of new BI features and functionality to prepare self-service reports and dashboard. Self-service reports and dashboard. Can you define what is a self-service dashboard या self-service reports? Self-service क्या होता है? खुद से करना. हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होता है ना सेल्फ सर्विस. खुद से जाओ, प्लेट में जो भी लेना है आपको खुद से सर्व करना है. तो व्हाट इज द सेल्फ सर्विस रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड? सेल्फ सर्विस रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड मीन्स आज से ना 30 इयर्स पहले जब कंपनीज की मीटिंग्स होती थी ना, वी यूज
प्रेफर करते थे कि हम लोग पावर पॉइंट में उसको प्रेजेंटेशन करें, है ना, पीपीटी। सो पीपीटी वाज नॉट सेल्फ सर्विस रिपोर्ट्स, पीपीटी वाज कि पीपीटी जो चल रहा है या पीपीटी जो आपको शेयर किया गया है, यू कैन ओनली सी द आउटकम्स, यू कांट चेंज द डायमेंशंस ऑफ डेटा, है ना। सेल्फ सर्विस मीन्स यू विल बी प्रोवाइडेड अ लिंक एंड इन द डैशबोर्ड आप ना उसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। लाइक इफ एबीसी कंपनी के पास 4 कंट्रीज में उनके ऑफिसेस हैं, है ना, एंड दे आर शोइंग कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, है ना, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा लॉस प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा सेल्स कितना हुआ, है ना। सो वो एक सिंगल स्क्रीन पर देखेगा, है ना, यूजर जो सिंगल स्क्रीन पर देखेगा, बट यूजर वांट्स कि नहीं मुझे सिर्फ इंडिया का देखना है। सो उसको डेवलपर को ना पूछना पड़े कि डेवलपर को बताया कि नहीं मुझे इंडिया का आप बना के दो। सेल्फ सर्विस मीन्स कि व्यूअर कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ डेटा, दैट इज द सेल्फ सर्विस, ठीक है। सो इन द सेल्फ सर्विस रिपोर्ट्स वी insert few drop downs, few buttons, okay, filter box कि जहाँ पर आप टाइप करके भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सको, है ना, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए डेवलपर डिपेंडेंसी ना जाए। एंड इफ यू लर्न एक्सेल देन यू कैन इजिली स्विच नॉलेज टू पावर बीआई। पावर बीआई डेडिकेटेड टूल हम लोग इस सेशन में कवर, इस बैच में भी कवर करेंगे। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन एक्सेल, है ना। एक्सेल के फंक्शन जो है ना, एक्सेल का फंक्शन अगर पूछा जाए कि एक्सेल का फंक्शन, तो सबसे पहले आ जाता है वीलुकअप, ठीक है, बट एक्सेल सिर्फ वीलुकअप के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है ना, ईओ मंथ है, ई डेट, उसके सिंटैक्स जो है ना एक्सेल के, द सेम सिंटैक्स यू कैन यूज इन पावर बीआई, ठीक है। एंड एक्सेल इन 2020 लॉकडाउन के टाइम में ना, लॉकडाउन के टाइम में जब इस पीरियड में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया एआई फीचर्स। द एआई फीचर वाज एनालाइज। एनालाइज मीन्स आप उसको सिर्फ डेटा दे दो, एक्सेल को ना सिर्फ डेटा दे दो, एनालाइज बटन पे क्लिक करोगे ना तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना वो आपको शोकेस कर देगा, ठीक है। आपको नहीं पता है कि इस डेटा का करना क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। न्यू डेटा टाइप्स, लाइक इफ यू रिसीव 15 कंट्रीज नेम, अब हर कंट्री का ना आपको जीटीपी चाहिए, जीडीपी, उसका पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप क्या करते हो, गूगल करते हो एक एक कंट्री का, आप एक्सेल के अंदर ही कर सकते हो उसको, एक सिंगल क्लिक में एक्सेल आपको प्रोवाइड कर देगा वो। देन कम्स टू इंसर्ट डेटा फ्रॉम पिक्चर, प्रिंटेड डेटा अगर है ना टेबुलर फॉर्म में, उसको एक्सेल में आपको इंसर्ट करना है ना, नो नीड टू यूज एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऐप you can directly transfer that data to Excel worksheet, ठीक है। and the last is dynamic array. dynamic array means जब आप Excel के functions लिखते हो उसका आउटपुट कितने सेल में आता है, सिंगल सेल में, है ना। dynamic array का कॉन्सेप्ट आया कि if it require more than one cells to display results तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइज कर देता है उसके आउटपुट एरिया को। the example is if you receive 40 products name, आपको नहीं पता है 40 प्रोडक्ट्स नेम में कितने यूनिक हैं, माइट बी कि 20 नेम्स यूनिक होंगे, 21 यूनिक्स होंगे। बाय यूजिंग डायनेमिक एरे फंक्शन आप सिंपली टाइप करो इक्वल साइन यूनिक, प्रोवाइड द रेंज, उसको जितना चाहिए होगा ना उतना वो साइज अपना आउटपुट का ले लेगा, ठीक है। सेकेंड, इन डायनेमिक एरे फंक्शंस में ना हमारे पास कुछ और भी फंक्शन विच इज ओनली अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट 2024 एंड 21। कॉलेज में मेरे ख्याल से 19 है, 16 है, 13 है ना, 13 में सारे फीचर्स नहीं है, ठीक है। सो अगर आप उन फीचर्स को यूज करना चाहोगे ना तो आप गूगल शीट पे भी कर सकते हो, ठीक है, एंड office.com जो है माइक्रोसॉफ्ट पोस्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड एक्सेल के पास भी चैट जीपीटी के बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है, बट चैट जीपीटी इस पे यूज करोगे ना तो स्लो कर देगा आपका प्रोसेस, ठीक है। एंड बहुत कंपनीज जो है वो प्रेफर नहीं करती है कि सारा काम चैट जीपीटी से करे, ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, आपको सारे डेटा को लेकर के सर्वर पे अपलोड करता है ना, देन आउटपुट करता है, उससे फास्ट तो आप टाइप करके कर लोगे फॉर्मूले से, ठीक है। लास्ट इज बिग डेटा। कोई बताएगा बिग डेटा क्या होता है? व्हाट इज द बिग डेटा? जो डेटा बड़ा हो, पूरे साल की सेल्स की रिकॉर्ड, और कुछ
कोई बड़ा, बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा? जैसे पूरी कंपनी का मतलब डेटा हो गया, पूरा मार्केटिंग का डेटा हो गया, जैसे मार्केटिंग और कुछ? वो भी बिग डेटा नहीं हुआ। और कुछ? जिसकी रोड लिमिट 1 मिलियन होती है। रोड लिमिट 1 बिलियन होती है, 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन। ठीक है। एक्सेल के अगर कॉन्सेप्ट कंटेस्ट में बात करेंगे, तो उन्होंने बताया कि एक्सेल के कंटेस्ट में बिग डेटा क्या जो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा। सो एक्सेल का कितने लिमिट है? 1 मिलियन। सो 1 मिलियन का डेटा अगर आ जाता है, उनमें से ज़्यादा 4 मिलियन का डेटा आ जाता है, सो वी कांट एनालाइज इन एक्सेल। कि आप पूरे डेटा को कॉपी करोगे तो क्या करेगा? 1 मिलियन डेटा को स्टोर करेगा एक्सेल, उससे ज़्यादा करेगा ही नहीं, है ना। सो एक्सेल के कॉन्टेस्ट में बात करेंगे बिग डेटा विच वी कांट स्टोर इन एक्सेल फाइल। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, उस डेटा को आप 4 या 5 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, अलग अलग वर्कशीट में पेस्ट करोगे, बट दैट विल बी मैनुअल टास्क, है ना। सो वी हैव 2 features in Excel, data model and Power Query, and these features are also available in Power BI. So ये दोनों सीखोगे ना, you can use in Excel as well as Power BI. So ये क्या करेगा ना, आपसे डेटा पूछेगा where your data is located. That can be Excel, that can be CSV file. CSV file होता है, CSV file, comma separated value, text file, SQL database, Oracle database, कहीं पे भी डेटा हो सकता है. You need to connect that data with Excel. डेटा कनेक्शन क्रिएट करेगा, वो डेटा को स्टोर नहीं करेगा एक्सेल, ठीक है। एंड इफ यू मेक एनी चेंज इन योर डेटाबेस या फाइल को चेंज करते हो ना, एक्सेल के पास जो आउटपुट आएगा ना वो भी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडल एंड पावर क्वेरी, इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सेल 2010, 15 ईयर्स हो गए इसको आए हुए, ठीक है। एंड स्क्रिप्टिंग एक्सेल ऑल्सो पॉसिबल इन नाउडेज, ठीक है। सो इफ यू नो पैथन, आर, स्केला, जूलिया, जावा, अगर किसी भी लैंग्वेज को जानते हो ना, यू कैन डू स्क्रिप्ट इन एक्सेल। इनफैक्ट ऑफिस 365 जो अभी लाइसेंस्ड वाला है ना लेटेस्ट में, उसके अंदर आप पैथन की कोडिंग भी कर सकते हो। ये देखो, आई एम यूजिंग द लेटेस्ट एक्सेल, द दिख रहा है आपको पैथन, ठीक है ना। एक्सेल के अंदर आप पैथन की कोडिंग कर सकते हो। सो आज की डेट में एक्सेल के पास जो पावर है ना, बहुत कम ही लोग सारे चीज़ों को यूज कर रहे हैं एक्सेल की, ठीक है। एंड एक्सेल काफ़ी फास्ट भी हो गया आज की डेट में। सो अगर मैं याद करूँ अपने 10 ईयर्स पहले के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है, और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत डिफरेंस आया है। पहले मुझे मैनुअल एक चीज़ बताना पड़ता था, आज के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्कूल टाइम से ही आप लोगों को बता दी जाती है ना। एंड आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है, ना कंपनी के पास टाइम है, ना यूजर के पास टाइम है। सब लोग चाहते हैं जल्दी से काम हो, बट मैटर क्या करता है? एक्यूरेसी। तो जल्दी का काम कभी क्या होता है ना, एक्यूरेसी आपकी वहाँ पर हैम्पर होती है। सो हम लोग को जो स्टेप्स लेंगे ना, उसमें हम लोग ऑटोमेशन में देखेंगे एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो जस्ट इंट्रोड्यूस एक्सेल। ये बहुत पुराना ऐड मिला था मुझे, 35 ईयर्स पुराना, ठीक है। ऐड फॉर एक्सेल 3.0, एंड इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। सो ये ऐड था काफ़ी पुराना। इसमें अगर इंटरफेस देखोगे ना, सो इंटरफेस में इतने ऑप्शंस हैं ना, ऑलमोस्ट ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, बट चेंजेस क्या हुए हैं कि इसमें फीचर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। सो Excel users अगर देखोगे more than 1 million users, and initially released in 1985 for Apple Mac। ये Microsoft का प्रोडक्ट है, बट रिलीज किसके लिए हुआ? पहले Apple Mac के लिए, ठीक है। वर्जन बाद 1.0, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ जो Microsoft का ही ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने डेवलप किया था और टेस्टिंग के लिए पहले इस पर टेस्ट किया, ठीक है। देन they released Excel 2.0 for Windows, ठीक है। बहुत ही बेसिक एक्सेल था उस समय। आज की डेट में ना एक प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, कि जब हम लोग फाइल्स बनाते हैं, कंपनीज में फाइल्स बनाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी कंपनी के पास एक सिंगल क्लाइंट हो। इट माइट बी कि कंपनी इज हैंडलिंग मोर देन 20 क्लाइंट, 30, 50, 100 क्लाइंट्स, ठीक है। जब हम फाइल को सेंड कर देना क्लाइंट के पास,
सो क्लाइंट कंप्लेन करता है कभी कभी कि आपने जो फाइल भेजी है ना उसमें एरर आ रहा है फॉर्मूलेस में, ठीक है। कुछ फीचर्स जो है ना वो आप तो बता रहे हो कॉन्फ्रेंस कॉल में कि ये फीचर्स आपके फाइल में दिया हुआ है बट वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो फाइल मैंने बनाई है, माइट बी आई एम यूजिंग द लेटेस्ट एक्सेल, जिस क्लाइंट को मैंने भेजा है दैट क्लाइंट इज यूजिंग ऑफिस 2010 और ऑफिस 2007, ठीक है। सो बहुत सारे फीचर्स पुराने वाले वर्जन में नहीं है, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल के वर्जन कौन कौन से हैं, कौन कौन से फीचर्स जो है हमें यूज नहीं करना है। इफ क्लाइंट इज सेइंग कि देखो मैं ऑफिस 10 भेज रहा हूँ तो जो भी फाइल भेजना ना वो कंपेटेबल हो ऑफिस 10 के लिए, ठीक है। एंड इफ वी रिसीव सम हिस्टोरिकल डेटा लाइक 30 ईयर्स पुराना डेटा मेरे पास मिला, ठीक है, तो उस फाइल को कैसे हैंडल करनी है। सो वी कैन डिवाइड द एक्सेल वर्जन इन टू पार्ट, प्री 2007 एंड पोस्ट 2007। प्री 2007 2.0 से लेके 11.0 तक आया है। इसके पहले आया है ऑफिस 2003, ठीक है, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2000, ऑफिस 97, ऑफिस 95, उसके पहले भी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑफिस 95 से मैंने स्टार्ट किया यूज करना। पहले क्या होता था 95 आता था ना वो 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक 95 यूज होता था, ठीक है। जैसे अभी भी आपके ऑफिस लैब में 13 यूज हो रहा है एंड करेंटली कितना इयर्स हो गया, 12 इयर्स पहले आया था, है ना। बैंक्स में जब जाता हूँ ना, बैंक्स में कभी करंट में वो लोग कौन सा ऑफिस यूज करते हैं, ऑफिस 2007 द बेसिक वन। क्यों यूज करते हैं, बहुत लाइट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है वो, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स नहीं है उसमें। सो 95 97 तो फाइल एक्सटेंशन वाज .xls। इंपॉर्टेंट क्यों है इसको लिखना, जब भी आप .xls वाली फाइल को ओपन करोगे ना, हाँ एक्सेल शीट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ठीक है, जब भी इस फाइल को ओपन करोगे ना तो देखोगे ना बहुत सारे फीचर्स जो है ना आपके ना वो डिसेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फाइल 2007 से पहले के लिए कंफर्टेबल है। सेकंड, जो उसका रो लिमिट होगा ना, अभी रो लिमिट कितना है 1 मिलियन, उस समय था 65,000, ठीक है। सो बहुत लोग थे यार मैं जब भी ये फाइल ओपन कर रहा हूँ मेरे पास तो 65,000 ही आ रहा है, जबकि मैं तो एक्सेल लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कि एक्सटेंशन इसका .xls है, तो उसका सोल्यूशन क्या करोगे आप, save as with the latest file extension. The latest file extension is XLS, लास्ट में क्या लगा देंगे X stands for XML, ठीक है। XML एक प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें क्या होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज करके उसका फुल फॉर्म है। उसमें जब हम लोगों ने ना, जब माइक्रोसॉफ्ट ने जब फाइल एक्सटेंशन चेंज किया ना, उसका साइज भी इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गया ना। एक प्रॉब्लम क्या आ सकती थी, फाइल साइज काफ़ी हेवी हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ना उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया। लाइक कोई भी फाइल आप 25 MB की है या 26 MB की है, ईमेल पे सेंड करते हो, सिर्फ 26 MB की फाइल सेंड हो जाती है 26 MB की जीमेल पे। आई थिंक उसकी भी कुछ लिमिट होती है ना कि 25 MB से ज़्यादा फाइल नहीं जा सकती है। तो आप उसको सोल्यूशन सबसे पहले क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, है ना। सो जब एक फाइल एक्सटेंशन XLS के बाद जो X लगा ना, उसमें कंप्रेशन भी इंक्लूड था, ठीक है, X लास्ट में सेम XLS तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट में एक X ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन द गेम चेंजर वर्जन वाज एक्सेल 2007, ठीक है। गेम चेंजर क्यों, क्योंकि 7 के बाद सबसे बड़ा चेंज किया हुआ फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। सेकेंड, बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए 7 में, बहुत सारे फीचर्स, ठीक है। जब ये लॉन्च हुआ था ना, आई वाज वर्किंग इन कॉल सेंटर, ठीक है, वहाँ पर MS डिपार्टमेंट में। सो मैं बहुत एक्साइटेड था कि 7 की फीचर्स इतने सारे आ गए हैं, मुझे भी यूज करना है। बट कंपनी ने मुझे प्रोवाइड कौन सा कर रखा था, एक्सेल 2003, ठीक है। सो कंपनी को अडेप्ट करने में 3 इयर्स लगे हैं बहुत सारी कंपनीज को, ठीक है। एंड अभी भी यूज होता है ये वाला वर्जन 7। सो ये बता दिया मैंने आपको, ओल्ड मेन्यू रिप्लेस किया उन्होंने, मच लार्जर फाइल्स। देन कम्स टू एक्सेल 2010। सो वर्जन कितना था इसका, 12.0। 2.0 के बाद क्या आ गया, 14.0। 13 वाज मिसिंग। 13 मिसिंग क्यों था, 13 नंबर्स का कुछ सुपरस्टिशन भी है क्या, है ना। मैं तो थोड़ी मानता है उसको,
ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 13 वर्जन को स्किप कर दिया कि 13 जो लकी नहीं है, हो सकता है मेरा प्रोडक्ट ना चले। ठीक है, अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको उसकी कंप्लीट स्टोरी मिलेगी। सो देयर इज नो वर्जन 13। 2012 के बाद 14 आ गया। 10 में भी दे इंट्रोड्यूस 61 न्यू फंक्शंस और फीचर कॉल्ड स्पार्क लाइन्स, स्लाइसर, प्रोटेक्टेड व्यू ऑफ डाउनलोडेड आइटम्स। 13 7 के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आए ना वो 13 में आए। ठीक है, 13 में क्या है, आज की डेट में डेटा आप कहाँ स्टोर करते हो? क्लाउड में, हर चीज़ क्लाउड में करते हो। सो 13 में उन्होंने क्लाउड सपोर्ट दे दिया। ठीक है, क्लाउड सपोर्ट, क्योंकि डायरेक्टली सेव द फाइल टू वन ड्राइव और गूगल ड्राइव, जो भी ड्राइव है ना, डायरेक्टली सेव कर सकते हो। एंड 13 में टच स्क्रीन डिवाइसेस भी काफ़ी पॉपुलर होने लगी, है ना। सो दे इंट्रोड्यूस अ टूल फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस की डिजिटल पेन से भी आप कर सको। इक्वेशन लिखना है, पहले हम लोग इक्वेशन टाइप करते थे, आप सिंपली क्या करते हो, डिजिटल पेन से इक्वेशन लिखो, वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देयर इज ए इक्वेशन एडिटर। ठीक है, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट ऐड ऑन को 13 में बाय डिफॉल्ट उन्होंने इनबिल्ट कर दिया। 10 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो आपको ऐड करना पड़ता था, बट बाय डिफॉल्ट 13 में आपके पास आ गया है। ठीक है, देन कम्स टू 16। ठीक है, 16 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। 16 में काफ़ी चेंजेस नहीं है, बट एक फीचर्स काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ। दैट फीचर वाज वन क्लिक फॉरकास्ट। अगर आपके पास ना हिस्टोरिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल 15 मंथ्स या 5 ईयर्स का, आपको नेक्स्ट 1 ईयर का फोरकास्ट करना है ना, बेस्ड ऑन दैट डेटा एक सिंगल क्लिक में फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, 16 के बाद ना बहुत से वर्जन आए, 19, 21, 24 एंड एक्सेल 365। एक्सेल 365 जो है ना, 13 के साथ ही ना 365 का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उससे सिर्फ है क्या, अपना मंथली सब्सक्रिप्शन लेती है कंपनीज, जो भी फीचर्स आएगी ना सबसे पहले उनको मिलेगा। अभी आपके सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या लैपटॉप में इंस्टॉल है, वो आपने ऑफलाइन इंस्टॉल कर रखा है ना, अपडेट तो नहीं होता है वो, बट ऑफिस 365 करोगे ना, अपडेट कर सकते हो न्यू फीचर्स को। ठीक है, एंड सबसे पावरफुल इसका जो एडिशन था, दैट वाज डायनेमिक एरे फंक्शंस। ठीक है, एंड कुछ और भी फंक्शंस आए हैं इसमें, लाइक लैम्डा फंक्शन, ठीक है, लेट फंक्शन एंड पाइथन स्क्रिप्टिंग इनबिल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ आपका लेटेस्ट ऐड होता जा रहा है। तो अगर आप MNCs में जाते हो ना, अगर वर्क के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो आप देखोगे ऑफिस 365 पे वो लोग जो जिस मेथड से कर रहे हैं और जो कॉलेजेस में या फिर आपके एकेडमी में जो पढ़ा जा रहा है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सो आई विल ट्राई कि जो लेटेस्ट वाला है ना वो भी आपको कवर करूँ। प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी ऑफिस सिस्टम आपको अवेलेबल है वहाँ पर कर सकते हो उसको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नॉट ओनली कंपनी जो आपको एक्सेल प्रोवाइड करती है या वर्ड प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ा कंपटीटर कौन सा है? गूगल। ठीक है, एंड कंपनीज धीरे धीरे स्विच हो रही है गूगल पे। थैंक यू। कंपनी धीरे धीरे स्विच हो रही है। आपके कॉलेज में भी मैक्सिमम जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, सारे डेटा आप लोग गूगल फॉर्म में मेंटेन करते हो, है ना, यू कैप्चर डेटा है ना गूगल फॉर्म के थ्रू, देन एनालाइज करते हो। बहुत से कंपनी यूज कर रही है गूगल वर्कशीट। सिमिलरिटीज़ क्या है कि फंक्शंस तो सेम ही है दोनों के, ठीक है, बट कुछ फीचर्स गूगल शीट के बाद काफ़ी कन्वीनियंट फीचर्स हैं। एंड जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, उनके पास जो फीचर्स हैं ना वो काफ़ी पावरफुल है कंपनीज के लिए। ठीक है, गूगल शीट में अभी भी जो फीचर्स है ना वो माइक्रोसॉफ्ट से कम है, ठीक है, बट काफ़ी कन्वीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए। वो क्लाउड पे सारा काम हो जाता है, शेयरिंग भी हो जाती है, कोलैबोरेट भी हो जाता है। कभी नाम सुना WPS ऑफिस का? क्या है, कहाँ पे देखा है WPS? आपने कभी भी ना, अगर आप कोई भी चाइनीज कंपनीज का फ़ोन, मैक्सिमम फ़ोन तो चाइनीज ही है, बट चाइनीज OS वाले फ़ोन जो आते थे ना पहले, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लोड करके देते थे आपको, है ना। आज की डेट में है ना कि आप अगर आप आईफोन लेते हो तो बहुत सारी जो ऐप्स हैं आप हटा सकते हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग। आप अगर सैमसंग फ़ोन लेते हो तो सैमसंग में कुछ ऐप्स को पहले से दे देती है।
तो चाइनीज जो ओएस बेस्ड थे ना, वो बाय डिफॉल्ट WPS ऑफिस देते थे, ठीक है। WPS ऑफिस ना काफ़ी पुराना ऑफिस पैकेज है। इसमें सारी फाइल्स होती है, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, सारे होते हैं इसमें। ये चाइना ओरिजिन है इसका, ठीक है। सो इनिशियली रिलीज 1988। आपको पता है कि चाइना के पास सब चीज़ अपना है, वो फेसबुक यूज नहीं करते हैं, उनका कुछ है ना अलग से सोशल मीडिया के लिए, कुछ वीवो करके कुछ है, वी चैट है ना। सो WPS ऑफिस काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, एंड बहुत से कंपनी लेकिन प्रेफर नहीं करती WPS ऑफिस, ठीक है। फीचर्स भी करीब सेम है दोनों के, ठीक है। मैंने बहुत कम यूज़ किया इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट WPS ऑफिस में फीचर्स पावरफुल फीचर्स हैं। पूरी कंट्री अगर यूज कर रही है तो फीचर्स तो होने ही चाहिए। देन कम्स टू नेक्स्ट जोहो ऑफिस। नाम सुना है कभी जोहो का? सुना था। जोहो कंपनी है ना, फर्स्ट कंपनी है बैंगलोर बेस्ड कंपनी जिन्होंने अपना ऑफिस पैकेज लाया है। इनका खुद का है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खुद का है इनका, ठीक है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है एंड काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है जो ऑफिस, ठीक है। फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन काम के जितने उतने हो जाता है जो ऑफिस, ठीक है। आई वर्क, अगर मैक यूजर से नंबर्स होंगे आपके पास इंस्टॉल, मैक में आपके पास अलग से ऑफिस होता है ना। लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस, ये दो ऑफिस भी फ्री ऑफिस है, कोई पे नहीं करना है, फ्री आप यूज कर सकते हैं। WPS पेड है, WPS पेड है एंड लिमिटेड फ्री जो है ना, लिमिटेड फीचर्स है उसमें WPS में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस भी काफ़ी पॉपुलर है। पहले ना एक स्टार ऑफिस हुआ करता था 2000 के अराउंड, स्टार ऑफिस काफ़ी पॉपुलर था। स्टार ऑफिस के जितने भी प्रोग्रामर थे ना, मेन उन्होंने कंपनी छोड़ दी, कंपनी छोड़ के स्प्लिट हो गए दो पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट ने लिब्रे ऑफिस बना दिया, दूसरे ने ओपन ऑफिस बना दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका यूजर बेस भी कम हो रहा है, ठीक है। जब से गूगल वर्कशीट आया ना, जितनी भी कंपनी बता रहा हूँ ना, सबका मार्केट जो है ना वो गूगल आपका वर्कशीट उसने एक्वायर किया है। नाउ एक्सेल पे सब लोग काम करते हैं, ठीक है, बट मैटर इज दैट एक्यूरेसी। मिलियंस ऑफ एक्सेल यूज इन मेडिसिन, साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल। एक डेसिमल पॉइंट अगर आपने टाइपो एरर कर दिया, वो कितना लॉस करेगा, इट डिपेंड्स कि डेसिमल पॉइंट्स कहाँ पे था, ठीक है। दैट इज अ टाइपिंग एरर। सेम एज एक्सेल में भी ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ना, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, उसके कारण कंपनी को काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। व्हाट आर दिस कॉमन मिस्टेक्स? एक कंपनी थी ट्रांसल्ट, आप तब तक ना आपको गूगल फॉर्म, सॉरी जो वर्कशीट सेंड किया उसमें ईमेल आईडी भी होगा ना, मैं आपको कुछ फाइल सेंड कर दूंगा ईमेल करके। फर्स्ट इज ट्रांस एल्टा कंपनी, अगर उसको सर्च करोगे ना, इसमें मिस अलाइन द रोज इन एक्सेल स्प्रेडशीट द कॉपी एंड पेस्ट एरर, इसने कितना लॉस किया था पूरे ईयर का ना 10% प्रॉफिट, ठीक है। बहुत कॉमन एरर था, मैं इसको एरर को दिखाऊंगा अभी आपको फाइल शेयर करके, ठीक है। बार्कलेज बैंक नाम सुना होगा आप लोगों ने। बार्कलेज बैंक में 2008 में ना सेल को उन्होंने डिलीट नहीं किया था, हाइड कर दिया था। हाइड करने से क्या हो गया, उसको मिलियंस का लॉस हुआ जब बिल्ड किया तो, मिलियंस का लॉस, ठीक है। बहुत बेसिक सा मिस्टेक था इनका, ठीक है। लंदन वेल्स इंसिडेंट 2012, 6.5 बिलियन लॉसेज एंड फाइन लगा थे इनको, एक्सेल का एरर था। सो एक होता है ना, यूजर बोलता है सर छोटी सी तो गलती की थी, बट वो गलती कंपनी को कितना लॉस करता है ना, वो मैटर करता है। तो हम लोग जो भी रिपोर्ट्स बनाएंगे ना, हम अपने रिपोर्ट्स को खुद भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम ऑडिट का मीन्स क्या होगा कि पूरे वर्कशीट में ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई रो हाइड करके रखा हुआ है, तो उसको ऑडिट कैसे करेंगे। अगर हमने हमारे पास 12 मंथ्स का डेटा है, हमने फॉर्मूला लिख रखा है, ऐसा तो नहीं कि कोई मंथ मिसिंग हो गया है उस फॉर्मूले में, ठीक है। कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो टेक्स्ट में एंटर्ड है उसको टोटलिंग में छोड़ दिया है, तो वो सारी चीज़ को हम लोग ऑडिट करना सीखेंगे, ठीक है। कम सीखेंगे बट एक्यूरेट चीज़ें सीखेंगे कि हम एक्यूरेसी के साथ अपने रिपोर्ट्स को डेवलप कर सकें। द लास्ट वन इज
एक्सेल वर्कबुक एक बार कोई भी एक एक्सेल फाइल ओपन करना, कोई भी एक एक्सेल फाइल सिस्टम में ओपन करना। ब्लैंक वर्कशीट, उसमें लिखना DEC 12, DEC 12, एंटर प्रेस करना। क्या आ रहा है? दिसंबर 12 आ रहा है, सबका ही आ रहा है, ठीक है। 12 DEC करो, सेम वैल्यू है, आपने टाइप तो अलग अलग किया है। सो इन्होंने क्या किया था, SUGO जो कमेटी थी, इसने ना कुछ नेमिंग जो की थी ना अपने टेक्स्ट फाइल में ना, कुछ इस तरह से नेमिंग की थी ना कि वो लुक लाइक डेट हो रहा था, डेट की तरह दिख रहा था। जैसे उन्होंने एक्सेल में इंपोर्ट किया ना, वो ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जितने भी नेम्स थे ना, वो सारे के सारे उनके नेम्स चेंज हो गए, ठीक है। सो एक्सेल के पास ना कुछ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जिसे हमें ना मैनुअली उसको स्टॉप करना होता है। नहीं तो आप कुछ भी 1/4 करना, 1/4, 1/4, आपका कितना आ रहा है? आपका कितना आ रहा है? आप लोगों का सबका 4 जैन, इनका 1 अप्रैल आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ, कौन सा फीचर्स की सेटिंग में? हम लोग टर्म से फेमिलियर होंगे, है ना। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों आ रहा है? टर्म्स क्या है कि जब भी हम लोग डेट दे रहे हैं तो सिस्टम में जो डेट कैप्चर होता है किस फॉर्मेट में होता है। इंडिया में कौन सा डेट यूज करते हैं हम लोग? डेट का फॉर्मेट जो होता है कौन सा यूज करते हैं? DDMM। और यूएस में कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? MMDD, है ना। जैसे इंडिया में हम लोग पहले फर्स्ट नेम बोलते हैं, फिर लास्ट नेम बोलते हैं। वहाँ बहुत से कंट्री में पहले लास्ट नेम बोलते हैं, देन फर्स्ट नेम बोलते हैं। इवन बोर्डिंग पास भी देखोगे फ्लाइट में तो पहले लास्ट नेम होता है ना। सेम एज एक्सेल में जब आप इंस्टॉल करते हो वो पूछता है कि ये एक्सेल जो यूज करोगे किस कंट्री में यूज करते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं ना, US इंग्लिश, लोकेशन यूएस कर देते हैं, तो यूएस के अकॉर्डिंग सारा सेटिंग हो जाता है, ठीक है। अगर इंडिया करोगे सेटिंग तो वो क्या करेगा, 1/4 को दैट विल ट्रीट एज 1 अप्रैल, अदरवाइज 4 जैन, ठीक है। तो इसको अगर मुझे 1/4 टाइप करना है तो ऐसे करेंगे हम लोग, मुझे 1/4 ही टाइप करना है, मुझे 1 अप्रैल नहीं चाहिए। ऑटो करेक्ट कर रहा है ना ये, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जब भी हमें कुछ टेक्स्ट वैल्यू टाइप करना है और मुझे करना है कि एक्सेल को ये बताना है कि इसको चेंज मत करना, दिस इज द टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एंटर डेटा। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सिंगल कोट कर देंगे, टाइप करो एक सिंगल कोट 1/4, ये कुछ देखो करके नहीं आएगा ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, अभी लास्ट मंथ एक फाइनेंस कंपनी थी, ठीक है। सो 50 और 60 CA आर्टिकल्स सब लोग थे उस ट्रेडिंग में, सब लोग बहुत बढ़िया एक्सेल करते थे, बट कॉमन चीज़ें जो थी ना, वो लोग कॉमन चीज़ वो फेस करते थे हमेशा प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन ना उन्होंने, होता है ना हम लोग इंडिया से जुगाड़, तो उससे कर रखा था, ठीक है। बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्यूरेसी उसमें आपको कंप्रोमाइज करनी पड़ सकती है। तो हम लोग स्टैंडर्ड जो मेथड एक्सेल का वो सीखेंगे, ठीक है। मैंने एक जुगाड़ बताया कि सिंगल कोट लगा दो, है ना, बट उसका और भी मेथड है उसको स्टोर करने का, वो भी देखेंगे, ठीक है। सिंगल कोट करके, सिंगल कोट 1/4 आ रहा है ना, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो मैं तो वही तो बोला ना, 1/4 मुझे टाइप करना है। डायरेक्टली कर रहे थे तो 1 अप्रैल हो रहा था एंड 4 जैन हो रहा था, सिंगल कोट लगा दोगे तो चेंज नहीं होगा। सेकेंड, एक्सेल के अंदर कितने डिजिट्स का नंबर स्टोर कर सकते हो आप? मतलब मैं पर्सनली कोई इंटरव्यू टीम में होता हूँ ना, पूछता हूँ क्वेश्चन कि एक एक्सेल के अंदर आप कितने डिजिट्स के नंबर्स को हैंडल कर सकते हो। कुछ तो कैपेसिटी होगी ना। कैलकुलेटर में कितने डिजिट्स डिस्प्ले करता है? 10 डिजिट्स। कैलकुलेटर लिखा होता है ऐसे 12 डिजिट सपोर्ट, 10 डिजिट सपोर्ट,
15 डिजिट सपोर्ट, 16 डिजिट सपोर्ट, जितना ज़्यादा सपोर्ट होता है उतना महंगा हो जाता है कैलकुलेटर, ठीक है। एक्सेल के लिमिट है कुछ, पहले एक्सेल के बारे में देख लेते हैं। एक्सेल लिमिट है, एक्सेल में ना मोर देन 15 डिजिट्स अगर टाइप करते हो नंबर, तो 15 डिजिट्स के बाद जो भी नंबर्स होंगे ना उसको जीरो ट्रीट करेगा वो। एंड बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है? एक्सपोनेंशियल, बड़ा होगा ना एक्सपोनेंशियल, ई के पावर पे, है ना। सो उसमें कन्वर्ट कर देता है उस नंबर्स को, ठीक है। सो द लिमिट ऑफ एक्सेल सेल इज 15 डिजिट नंबर ओनली। मोर देन 15 डिजिट्स के बाद जो भी नंबर टाइप करो। अब इसमें प्रॉब्लम को आप क्या आता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 12 तो नहीं होता है, कब ने रीड नहीं किया है? 16 डिजिट। तो बहुत लोग 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर करते हैं, है ना। चलो यार मैं सारे क्रेडिट कार्ड का नंबर ना स्टोर कर लेता हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कॉपी पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। जैसे 15 डिजिट के बाद का नंबर देखोगे ना तो जीरो हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार टाइप करके देखो, ऑटोमेटिकली वो देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। एरर नहीं आया, वो एक्सपोनेंशियल है, साइंटिफिक में आ गया वो। E+22 आया ना, साइंटिफिक में आया। फॉर्मूला सेल में देखो क्या वैल्यू आ रही है, फॉर्मूला सेल पे, फॉर्मूला सेल है ना, नहीं फॉर्मूला बार आ रहा है ना ऊपर में। उसके बाद 15 डिजिट के बाद क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, फॉर्मूला बार है। एक बार बताना, फॉर्मूला बार टॉप में होता है, जीरो नहीं आ रहा। जीरो नहीं आ रहा, आपने 16 डिजिट किया था, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। डबल क्लिक करना होता है, चेंज हो रहा है ना। आप लोगों को क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है फॉर्मूला बार पे। 1 पॉइंट समथिंग। इसको अगर आप चेंज करोगे ना, नंबर्स में चेंज करोगे ना, उसमें नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर्स में चेंज करोगे ना, तो लास्ट में देखना जीरो आएगा। 12 के बाद आ रहा है। आ गया। नंबर फॉर्मेट में चेंज करो, उसको फॉर्मेट चेंज करो। नंबर फॉर्मेट कहाँ से चेंज होता है? यहाँ से चेंज होता है। अच्छा, आप यहाँ से ना चेंज करो, यहाँ से, ठीक है। इसको नंबर्स में कर लेना, देखना 15 डिजिट्स के बाद जो भी डिजिट्स होंगे ना जीरो में आ जाएगा। आ गया ना, स्टार्ट इसी। हाँ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी कराऊंगा, स्पीड से एरर वाला भी कराऊंगा। हाँ ये वाला ओपन कर लो। ओके, एसेंशियल स्किल स्किल। सो एक्सेल इंट्रोडक्शन। गूगल शीट्स ओपन हो रहा है, ये डाउनलोड करोगे ना, सेव कर लो, सिस्टम में सेव कर लो। मेरी जो फाइल सेव आपको शेयर करूंगा ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है ना मैंने उसमें ऐड कर रखा। इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये वाला फीचर कैसे किया था ना, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ आपको मेरी फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। सो देयर आर फ्यू टर्म्स। ऑफिस से मैंने नाम रखा था, कोई बात नहीं, अगर आपका फिक्स काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले भी चले जाना, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज सेल। सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? जहां डेटा स्टोर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना जहां पर डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। क्या सेल का भी कोई लिमिट होता है, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर? कितना होता है? केबी कैसे होगा? सेल को कैसे केबी में करेंगे हम? 1 TB। फिर जब केबी नहीं होगा ना 1 TB कैसे होगा, है ना। इस पर टिक करना, इस वाले पे।
सो आपको डेफिनेशन भी आ जाएगा। थ्योरी पार्ट में क्लास में कम करूंगा, आप लोग के लिए फाइल रहेगी, आप थ्योरी पार्ट करना, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है। सो सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ वर्कशीट फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। ठीक है, कॉलम एंड रोज इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। जो चीज आप लोग ने पहले से कर रखा ना, उस पर हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। डेफिनेशन पढ़ के कुछ अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। सो कॉलम नेम अल्फाबेटिकली होता है, ठीक है, एंड रो नंबर्स होते हैं। ठीक है, वर्कशीट क्या होता है? पेजेज ऑफ बुक, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि इन अ वर्कबुक हाउ मेनी वर्कशीट वी कैन स्टोर। एक वर्कबुक के अंदर कितने वर्कशीट आप स्टोर कर सकते हो? अच्छा, जब आप न्यू फाइल बनाते हो बाय डिफॉल्ट कितने वर्कशीट्स आते हैं आपके पास? सिंगल आता है बाय डिफॉल्ट। जब भी न्यू फाइल बनाते हो एक ही आता है ना। पहले ये 3 आता था, ठीक है, पहले ये 3 होता था, बट मैंने उसको बाय डिफॉल्ट 1 कर दिया। ठीक है, बट मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे पहले वाला 3 ही चाहिए। तो कैसे करेंगे आप? कि मुझे जब भी फाइल बनाता हूँ ना, मुझे 6 चाहिए। हर बार जो न्यू फाइल बनती है मेरी कंपनी में ना, मुझे 6 वर्कशीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको डिफॉल्ट ऑप्शन को कैसे चेंज करोगे आप? दैट इज कॉल्ड बैक स्टेज चेंजेस। बैक स्टेज मीन्स ये तो फ्रंट स्टेज हो गया ना। बैक स्टेज मीन्स जो आपके एक्सेल को कंट्रोल करे। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होगा, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होगी, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट का जो आपका ग्रिड लाइन का कलर क्या होगा, आपके यूजर का नेम क्या आ रहा है। जब आप फाइल सेंड करते हो ना, तो सिर्फ फाइल सेंड नहीं होती है, फाइल का क्रेडेंशियल भी सेंड होता है कि फाइल बनी कब थी, फाइल किसने बनाई, फाइल को कितने यूजर्स ने एडिट किया है, सारी कंडीशन शेयर होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द एक्सेल बैक स्टेज? जब भी आप फाइल पे क्लिक करोगे, जस्ट गो टू फाइल पे जाते हो ना, यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शंस, जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शंस। ठीक है, कैन यू लोकेट कहां से चेंज कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट ये वर्कशीट 3 आया है हमारे पास, है कहीं पे? इंक्लूड दिस मेनी, है ना, बाय डिफॉल्ट 1 है। इसको आप 3 करोगे ना, जब भी आप फाइल न्यू बनाओगे ना, बाय डिफॉल्ट 3 आएगी। ठीक है, यूजर नेम यहां चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, दिस इज द बैक स्टेज। वन शॉट में सारा ऑप्शन हम लोग नहीं रीड कर सकते। जब भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट चेंज करना है ना, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, दिस कॉल्ड एक्सेल बैक स्टेज। वर्कबुक, कंप्लीट फाइल को वर्कबुक, दैट इज कॉल्ड फाइल मीन्स वर्कबुक। ठीक है, सेल रेफरेंस, एड्रेस ऑफ दैट सेल। पहले रो आता है कि पहले कॉलम आता है एड्रेस में? सेल रेफरेंस में पहले रो आता है या कॉलम आता है? कॉलम, कॉलम आता है ना, A6 V5। ठीक है, रेंज, रेंज मीन्स मोर देन 1 सेल। ठीक है, रिबन, रिबन क्या है इसमें? रिबन मीन्स जो आपका, ये देखो रिबन मैंने हाइड कर रखा है, आप डबल क्लिक करोगे ना तो इसको व्यू भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। जस्ट क्लिक ऑन डबल क्लिक। ठीक है, सो यू कैन हाइड और अनहाइड द रिबन। ठीक है, नेम बॉक्स, व्हाट इज द नेम बॉक्स? नेम बॉक्स काफ़ी यूजफुल फीचर है जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे होते हो, है ना, आप अपने वर्कशीट को डिफाइन कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। सो आप बोलते हो ना कि A6 सेल पे जो वैल्यू है ना, दैट इज लिंक्ड विथ A18। ठीक है, अब A6 मैनुअली सर्च करना पड़ेगा ना मुझे, A6 कहाँ पे है। यू कैन सिंपली यूज दिस नेम बॉक्स। आप यहाँ पर जो भी सेल का एड्रेस दोगे ना, लाइक इफ आई टाइप हियर H4 टाइप करना, H4 यहाँ पे नेम बॉक्स में बताना क्या वैल्यू आ रही है फॉर्मूला बार में।
H4, just type H4 in name box, you will navigate to that cell, ठीक है, और जो भी सेल पे आप क्लिक करते हो ना उसका एड्रेस भी आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। बट नेम बॉक्स का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, नेम बॉक्स का और भी एडवांस यूज है जो आगे देखेंगे हम लोग। दिस इज द बेसिक यूज, ठीक है। मुझे सेलेक्ट करना है H4 से लेकर के H12 तक, मुझे इस रेंज को सेलेक्ट करना है, या तो माउस से सेलेक्ट करेंगे, है ना, और वी कैन टाइप हेयर H4 कोलन H12 लाइक दिस, H4 कोलन H12, देखो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सो बहुत बार डेटा काफी बड़ा होता है ना, हमारे पास काफी बड़ा डेटा है ना, मैनुअली हम माउस से उसको सेलेक्ट करने टाइम लगता है ना, सिंपली फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन लास्ट सेल एड्रेस दोगे ना सिलेक्शन दे देगा। सो इट विल सेव फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आपका सेव कर रहा है। बट ये छोटी छोटी चीजें ना अगर आप इकट्ठा करोगे ना तो आपको डेली हाफ एन आवर से 1 आवर सेव करता है, डिपेंड्स ऑन कि कितना आवर का आप उस पर एक्सेल पे काम कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला बार, व्हाट इज द फॉर्मूला बार? दिस विल इज फॉर्मूला बार। कितनी लाइन का होता है फॉर्मूला बार? फॉर्मूला बार में कितनी लाइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग? विजिबल होगा सिंगल लाइन, बट इन एक्सेल नाउडेज वी कैन डू पोएमिंग इन एक्सेल यूजिंग लैम्डा फंक्शन, मल्टी लाइन पोएमिंग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये डाउन एरो पे, एंड इनफाइनाइट आप नीचे तक टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो पूरा का पूरा इक्वेशन कर सकते हो। रिकर्सिव पता है आप लोग को? रिकर्सिव पढ़ा है कभी? रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, रिकर्सिव होता है ना कि कोई भी कोड जो है ना, कोई भी फंक्शन जो है ना खुद को कॉल करे, ठीक है। तो वो फंक्शन जो खुद को कॉल, दैट इज रिकर्सिव प्रोग्रामिंग आल्सो पॉसिबल इन एक्सेल नाउडेज, ठीक है। जो प्रोजेक्ट होगा ना आपका, इसमें 7 to 8 लाइंस यूज हो जाएगा, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्या होता है? कहाँ पे? नीचे? नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार, वो ऊपर सेव और अनडू, यू कैन से शॉर्टकट्स, कमांड शॉर्टकट्स, है ना। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जो टॉप में होता है ऑलवेज विजिबल होता है, एंड यू कैन ऐड मोर कमांड्स, ठीक है, बाय डूइंग जस्ट क्लिक हेयर। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कमांड्स को। कुछ ही पर्टिकुलर कमांड्स को बार बार यूज करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपको ना फिल्टर कमांड बार बार यूज करना होता है, यू कैन ऐड दैट फिल्टर कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार। जस्ट गो टू मोर कमांड्स, ये सारे कमांड्स है इसमें, आप यहाँ जाओगे ना, आ रहा है ना, डेटा टैब, ये देखो आ रहा है, क्लियर और फिल्टर, को जो भी कमांड चाहिए ना आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। और हटाना है अगर, जस्ट डू राइट क्लिक है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। लास्ट है स्टेटस बार। डेफिनेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों के पास, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द स्टेटस बार, इसका यूज क्या है? जिनको एक्सेल नहीं आता है ना वो स्टेटस बार से बहुत से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिनको फॉर्मूला फंक्शन नहीं आता है, स्टेटस बार से भी वो बहुत सारे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट करेंगे और नीचे राइट साइड में फिर वो दिखाता है पूरा सामने, बेसिक कैलकुलेशन दिखाता है। सो जस्ट सेलेक्ट द डेटा, है ना, जस्ट सेलेक्ट द डेटा। इन द बॉटम साइड यू कैन सी एवरेज, काउंट एंड सम। क्या सबके पास यही आ रहा है? 3 ऑप्शन। जस्ट सेलेक्ट द डेटा। डेटा कौन सा सेलेक्ट करोगे? अमाउंट वाला डेटा है ना, जो अमाउंट वाला, जस्ट सेलेक्ट द डेटा। बताना इसका एवरेज कितना आ रहा है? 1684
684। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं उसमें? बस 3 ही आ रहे हैं। मुझे मैक्स भी चाहिए, मुझे मैक्स भी चाहिए, मिन भी चाहिए। सो यू कैन ऐड मोर कैलकुलेशन by doing right click here. When you do right click here, you can see there are few more options: minimum, maximum, numerical count. तो आपको जो चाहिए ना आप उसको ऐड कर सकते हो और क्लिक करके, जो नहीं चाहिए आप उसको, जैसे मुझे काउंट नहीं चाहिए आप उसको अनटिक कर सकते हो। ठीक है। सो बहुत सारे कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, नो नीड ऑफ एनी फॉर्मूला एंड फंक्शंस। ठीक है, मैं इसलिए बताया जिनको एक्सेल नहीं भी आता है वो कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग मूव डेटा टाइप। डेटा टाइप का मीन्स क्या होता है? डेटा किस टाइप का है ना? सो किस किस टाइप का डेटा हो सकता है एक्सेल के अंदर? सो दे आर 3 कैटेगरी ऑफ डेटा: text file, text data, number data, and boolean. Boolean means logical data. Logical means true, either true or false. ठीक है? So just type any text value in the first box. कोई भी text value टाइप करो, कुछ भी text value, दिल्ली टाइप कर लो, इंडिया टाइप कर लो, कुछ भी. Enter press करो. राइट साइड में उसका डेफिनेशन भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, सो व्हेन यू टाइप एनी टेक्स्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट द अलाइनमेंट विल बी लेफ्ट साइड, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट विल बी लेफ्ट साइड। ठीक है, फाइल आपको मिली नहीं होगी जो मैं ईमेल पे भेजी थी मैंने, उस पे काम कर रहा है तो काम कर, फिर प्रैक्टिस करके आप पाओगे। अच्छा, डाउनलोड हो सकता है, कर लो यहाँ पे। तो उसमें ना कन्फ्यूजन जो कोई प्रॉब्लम आती है ना ट्रबल शूट हो जाएगा लाइक। ठीक है, व्हेन यू टाइप एनी नंबर, कोई भी नंबर टाइप करना। आपको डाउनलोड नहीं हुआ क्या भाई? इसमें नहीं आ रहा इंटरनेट, इसको कर लो ना, ईमेल पे डाउनलोड। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक्सेल सिर्फ मेरी पार्ट है, वो वाली ना सिर्फ मेरी पार्ट है, कोई डाउनलोड नहीं होगा। मोबाइल इसमें कर देते ना, इंटरनेट चल रहा है ना, तो जीमेल से डाउनलोड कर लो, जीमेल से कर दिया तुमने। ऐसे प्रैक्टिस से नहीं होगा, इसी से कर लो। जीमेल ओपन नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है? पासवर्ड अच्छा सिस्टम पे करना होगा। नेक्स्ट क्लास में क्लास का स्टार्ट नहीं कर लेना, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होगी, ये तो बहुत बेसिक्स ऑफ फाइल्स है। अच्छा ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना मेरे लिए इजी होगा एडवांस टॉपिक बताना। ठीक है, मुझे तो मैं आर्ट्स की क्लास पे ले रहा हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ तो सुनते जा रहे हैं। नंबर्स में क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट इट विल बी राइट अलाइंड। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, नाउ बुलियन टाइप करना, ट्रू लोअर केस में करना, TRUE ट्रू। क्या हो गया ये? और कोई चेंजेस आया? अपर केस में आ गया। ठीक है, सेम एज इफ आई टाइप हियर FALSE लाइक दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट केस में किया मैंने, अगेन इट विल बी सेंटर लाइन। ठीक है, इन अपर केस नंबर में से राइट साइड रहेगा, नंबर राइट साइड ही रहेगा अनलेस अनटिल कि मैं उसके अलाइनमेंट मैनुअली चेंज ना करूं। मैनुअली आप चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट उसकी, मैनुअली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होम टैब पे जाओगे ना, यहाँ पे यहाँ से कर सकते हो। मैं तो मैंने लॉक कर रखा है इसका चेंज करने के लिए, यहाँ से कर सकते हो चेंज। ठीक है, आगे बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट ये होगा। मैं इसके बाद ना आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है। ये बेसिक एक्सेल क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते थे, स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। इसका यूज क्या है? ये बेसिक एक्सेल है, बट ये बेसिक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, एक फाइल और मैंने सेंड किया ना, उस पर हम देखेंगे। द लास्ट इज फंक्शन। सो फंक्शन का जो आउटपुट होगा ना, डिपेंड ऑन आउटपुट, वो डिसाइड करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है,
just type equal sign, any function starts with equal sign 1 plus 1 क्या आ रहा है, अलाइनमेंट क्या आ रहा है, राइट लाइन, नीचे वाले जो आपका बॉक्स है ना, टाइप इक्वल साइन 1 एम्परसेंड 1 एम्परसेंड एंड का साइन होता है, एंड का साइन होता है ना, एंड 1 हाँ क्या है, अच्छा ठीक है, एंटर करो। आपको डब्ल्यू प्लेस ऑपरेशन है इसमें हाँ ठीक है वही आ रहा है, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, चेंज होगी ना, एक की लैंग्वेज लेफ्ट है, एक की लैंग्वेज राइट है, दोनों दिख तो नंबर्स की तरह रहा है ना। जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि नंबर जो होता है ना, दिख तो नंबर रहा है बट वो ना टेक्स्ट में स्टोर होता है, तो फॉर्मूला उसको स्किप कर देता है, ठीक है, तो एक और एक ही 11 ही होता है ना। सो अलाइनमेंट पे भी ना आप क्या करोगे, डेटा आएगा ना, बहुत बार क्या आप ना अलाइनमेंट जैसे ही हटाओगे ना, उसका बाय डिफॉल्ट पे दोगे ना, वो बता देगा कौन सा इसमें नंबर जो है ना टेक्स्ट में स्टोर है, ठीक है, उसको करेक्ट कर सकते हो फिर, ठीक है। सो दे आर बेसिकली 3 डेटा टाइप्स, ठीक है। चलो एक फाइल और मैंने सेंड की आपको, कॉमन इश्यूज करके एक फाइल होगी, कॉमन इश्यूज, हाँ कॉमन इश्यूज करके एक फाइल होगी, केस 1 केस 2 केस 3 करके। कैन यू कॉपी द फर्स्ट टेबल डेटा एंड पेस्ट इट इन द सेकेंड टेबल। कॉपी करोगे B3 से लेकर के D10 तक, कॉपी करना B3 से D10 तक एंड पेस्ट इट टू B14। मोबाइल पे सारा नहीं होगा, फैकल्टी मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ कॉमन इश्यूज वाली बताना कुछ डिफरेंस क्या है, अगर हो पाया नहीं होगा क्योंकि बिना किए ना ऐसी चीज समझ नहीं पाओगे। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, डेटा नीचे पेस्ट किया सेकंड वाले टेबल पे, इन पर देख लेना इनका क्या है ना, तो आप कोरिलेट कर सकते हो। कॉपी करना, कॉपी कैसे करते हैं, जस्ट सेलेक्ट द पोर्शन फ्रॉम, इसको लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना लाइक दिस, कंट्रोल C, देन पेस्ट हियर। डिफरेंस बताओगे क्या डिफरेंस हुआ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले टेबल में क्या था, कुछ रोज हिडन थी, है ना, जब आप इसको पेस्ट कर रहे हैं तो हिडन रो भी आ गई। ये डेटा तो आपको विजुअल हो गया, डेटा काफी बड़ा होता है तो इसको इग्नोर हो जाता है, कंपनी के लिए इग्नोर हो जाता है ना। अगर हमने हाइड कर रखा है कुछ, हमारे पास कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, कि जिसने पे नहीं किया है फीस उसका हमने हाइड कर रखा है, ठीक है। फिर वो लिस्ट हमें जो फाइनल भेजना है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट ने पे किया है, जब सेलेक्ट कर रहे हैं
और बिना देखे अगर पेस्ट करके सेंड करते हैं तो जो हिडन रोज थी वो भी चली जाएगी, है ना। सो इसके लिए ट्रबल शूट क्या कर सकते हैं, अगर मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा हिडन है कि नहीं है, मैं श्योर नहीं है, बट मुझे करना क्या है कि जो विजिबल है सिर्फ वो कॉपी हो, जो विजिबल हो सिर्फ वो कॉपी हो। मैं पहले से एक स्टेप प्रिकॉशन ले रहा हूं कि जो विजिबल हो सिर्फ वो कॉपी हो और वही पेस्ट हो। सो हम लोग कॉपी करने का जो तरीका है ना वो चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट एंड कोलन की जब सिलेक्शन दोगे ना, जब सेलेक्ट द फर्स्ट टेबल को सेलेक्ट करना, जैसे सेलेक्ट किया था ना पहले, सिलेक्शन सेम रहेगा। एंड ऑल्ट की एंड कोलन की प्रेस करोगे ना, देखना विजिबल सेल सेलेक्ट हो जाएगा सर। हो रहा है? ऑल्ट एंड कोलन की सेमीकोलन वाला है ना, क्या आपका ऑल्ट के जो ऑप्शन होगा ना, क्लोज करके दोबारा हो रहा है? हो गया? अब विजिबल हो रहा है? अब ठीक है ना? डिफरेंस नहीं है। तो कभी भी ना आपको आपका वो विजिबल से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नीचे कर लो। हो गया ना? तो शॉर्टकट की है, अब हो गया। कॉपी नहीं कर रहा, आप ड्रैग कर दे रहे हो। ये ऑल्ट की ऑप्शन की होता है, ऑल्ट एंड कोलन की किया ना, सिलेक्शन हो गया, हाँ कॉपी किया हमने, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ठीक है आपका हुआ। ऑल्ट की है ना, ये है ना, ये देखो सिलेक्शन हो गया ना, आप कॉपी करो इसको, कॉपी कर लिया, अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। हाँ जी हो गया ना, डाउनलोड करो ना, डाउनलोड तो यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है ना, डाउनलोड हो गया ना, दूसरे सेकंड वाले डाउनलोड कर देना, इनेबल एडिटिंग पे जाओ। ठीक है, अब ये एरर का स्कोप नहीं होगा इसमें, है ना। केस 2 पे आते हैं हम लोग। केस 2 वाला मैंने ऑलमोस्ट आपको करा दिया है थोड़ा सा। केस 2 वाले में क्या है, जब भी आप नंबर कुछ भी एंटर करते हो, डिजिट्स एंटर करते हो, लाइक DC1 मुझे एंटर करना है, DEC1 क्या होगा इसमें, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा DC1 में, 1 दिसंबर। ठीक है, तो मुझे इसको टेक्स्ट में ही स्टोर करना है ना, इसके आगे सिंगल कोट लगा दोगे। ठीक है, अब ये DC1 ही रहेगा। ठीक है, एक और तरीका बताऊंगा आगे दूसरी वाली फाइल में। ठीक है, नाउ अब आपके पास ना अरुण विल गेट 1/5 पोर्शन, कुणाल विल गेट 2/5 पोर्शन। आपको ऐड करना है टोटल पोर्शन कितना होगा, कैसे करोगे इसको। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप 1/5 करते हो ना, 1/5 क्या होगा, फर्स्ट में हो जाएगा या 5th जैन हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन कि आपके सिस्टम में कौन सा फॉर्मेट है। ठीक है, सो कॉमनली हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा एंट्री जब करते हैं ना, मिक्स डेटा होता है, तो बिना देखे हम लोग डेटा एंट्री करते जाते हैं, एक्सेल की तरफ देखते ही नहीं है, तो वहाँ मिस्टेक आती है। ठीक है, तो आप करोगे क्या ना, एंट्री करने से पहले ही सेलेक्ट करोगे एरिया कि मुझे डेटा एंटर कौन सा करना है, नॉट डेट। एंटर क्या करना है मुझे, डेटा क्या एंटर करना है मुझे, फ्रैक्शन।
ठीक है। सो जस्ट गो टू होम टैब, यहां पे देखना फ्रैक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे फ्रैक्शन आ रहा है। सो ये प्रोसेस पहले करोगे, बाद में नहीं, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन करने के बाद अब डेटा एंट्री करो। अब देखना कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 1/5 आ रहा है, 2/5, ठीक है। 1/4, 1/8, ठीक है। कितना आ गया? 0.97, ठीक है। 0.975 को क्या फ्रैक्शन की जगह फ्रैक्शन में और भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आप यहाँ फ्रैक्शन करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 पे है। तो कोई भी आपका ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, सो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, जो जनरली इग्नोर हो जाता है। केस 3 को बताएगा, केस 3 में टोटलिंग सही है, केस 3 में टोटलिंग सही है। देखिए टोटलिंग, मैनुअली के टोटल पे देखिए, मैनुअली के टोटल पे देखिए, नहीं है ना, तो मिसिंग कहाँ पे? मैंने बोला ठीक है, कभी भी हम एक्सेल में भरोसा नहीं करते हैं, टेंडेंसी होती है कि जब हम कॉपी भी करते हैं ना फाइल को, तो दो बार या 3 बार कंट्रोल सी करते हैं, है ना। हाँ जी बताइए। F4H, कौन सा जो टेक्स्ट वैल्यू है? हाँ, तो वो मर्ज किया हुआ, उसको भी नहीं, उसको नहीं लेना ना। राइट साइड में आपको सिर्फ सी कॉलम का जो डेटा है ना, C4 से लेकर C14 तक का टोटल मैच है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला में रेंज ठीक दिया हुआ है, फॉर्मूला में जो रेंज है दैट इज करेक्ट और नॉट। टोटल का जो फॉर्मूला है ना, वो 05 जो आ रहा है, उस पर आप सेल पे क्लिक करोगे, उसमें क्या आ रहा है? इक्वल साइन सम रेंज, ठीक है, ठीक है। एक बार करना क्या है आपको, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम C4 से लेके यहां तक चले जाओ, C4 से लेकर के यहां तक चले जाओ, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट क्या आ रही है? अलाइनमेंट यहां पे क्या अलाइनमेंट आ रही है? लेफ्ट आ रही है ना, देखना C4 से लेकर के C14 तक का अलाइनमेंट कितनी आ रही है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट आ रही है ना। लेफ्ट वाले को डिसेबल कर दो, हाँ, लेफ्ट अलाइनमेंट को हटा दिया मैंने, हाँ, लेफ्ट है ना, उसको हटा दो, उसको क्लिक करोगे तो हट जाएगा ना। क्या आया? तो एक डेटा अपने आप लेफ्ट में चला गया ना। तो अगर मुझे अलाइनमेंट पता होती कि नंबर स्टोर किस पे होता है? राइट साइड, एंड टेक्स्ट किस पे होता है? लेफ्ट साइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उससे आपका निकल के आ गया। ये नंबर में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नंबर में प्रॉब्लम क्या है? इस नंबर में डॉलर से पहले सिंगल कोट है, ठीक है। बट एक्सेल ना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो एक्सेल इसमें हेल्प करता है आपको। एक्सेल हेल्प कैसे करता है कि जब आप एंटर करोगे ना, एंटर, तो आपको ना कॉर्नर साइड पे ना यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का इस तरह से एक सिंबल बना के देगा। जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ बता भी देगा आपको, यहाँ पे ना क्लिक करोगे आप, ठीक है। सो अलाइनमेंट से भी आप एक बार में देख सकते हो कि जो भी लेफ्ट अलाइंड है दैट इज नॉट नंबर, ठीक है। सो ये बहुत कॉमन मिस्टेक से जो लोग करते हैं, ठीक है, इग्नोर हो जाता है सिंपली। कोई भी वर्कशीट ना 100% एक्यूरेट बहुत कम होता है, कुछ ना कुछ एरर उसमें रह गए, ठीक है। बैक टू द फर्स्ट फाइल, लेवल 1।
अलाइनमेंट एंड फॉर्मेट, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप बॉटम, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, जो नेम है इसका उस पर क्लियर है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट क्या होता है। एक टर्म आता है आपका एक्सेल में ना, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब क्या होगा तो बताया था, रैप टेक्स्ट जो सेल की साइज होती है वो टेक्स्ट को सेल की साइज के हिसाब से देती है। और कुछ। रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट मीन्स अगर इफ यू इनेबल रैप टेक्स्ट इन अ सेल तो होता है कि विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ दैट सेल द कंटेंट इज एडजस्टेड इन मल्टीपल लाइंस, ठीक है। एंड इट बेसिकली यूज फॉर हेडर्स। कोई भी डेटा का हेडर जो होता है ना, हेडर काफी बड़ा है और डेटा उसके अंदर एंटर्ड है ना वो कम है, तो विड्थ काफी ज्यादा लेगा, अब उसके विड्थ को कम करोगे, है ना। रैप टेक्स्ट करते ही क्या होगा, मल्टीपल लाइंस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइक आप यहाँ देखो सेल्स अमाउंट आ रहा है ना, सेल्स अमाउंट कंप्लीट विजिबल है आपका, नहीं है ना, AM के बाद हाइड हो रखा है। सो जस्ट क्लिक ऑन सेल, देन गो टू होम टैब, यहाँ देखो रैप टेक्स्ट आएगा आपके पास, दिस वन आ रहा है रैप टेक्स्ट, जस्ट क्लिक हियर, ये देखो सेल्स अमाउंट ठीक हो गया ना। सो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल लाइंस, ठीक है, रैप टेक्स्ट। मर्ज एंड सेंटर क्या होगा, टू मर्ज मोर देन वन सेल एंड कंटेंट विल बी अलाइन सेंटर्ड। लाइक टाइटल में यूज करते हैं हम लोग, नॉर्थ जोन सिलेक्ट करोगे, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ओरिएंटेशन का यूज काफ़ी कम है, यूज करते नहीं है। ओरिएंटेशन मीन्स लाइक प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट को आपको डायगोनल में रखना है, देन यू कैन यूज लाइक दिस, ये देखो, ठीक है, बेसिक चीजें। चलो लास्ट, इंडेंट करना क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंट करना सेल को। वर्ड पे आपको काम करते होंगे, वर्ड फाइल पे, है ना, उसमें अगर आपको सिंगल स्पेस से ज्यादा देना, मल्टीपल स्पेस देना होता है, तो क्या करते हो आप, मल्टीपल टाइम स्पेस बार करते हो। अगर आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड में स्पेस ज्यादा देना हो तो क्या करते हो, मल्टीपल स्पेस देते हो। और कोई मेथड नहीं, क्या करते हो, एक सेल से दूसरे सेल में स्पेस ज्यादा देना है, मोर देन वन सिंगल स्पेस, टैब प्रेस नहीं करते हो, टैब करते हो ना, टैब से एक बार में स्पेस मल्टीपल हो जाता है ना। सेम एज अगर आपको ना बहुत सारे रोज हैं इसमें डेटा है, अब वो करना क्या है ना कि जो सोप शैम्पू है ना बिल्कुल ये बॉर्डर से आपका ना अटैच होकर रखा है, आपको थोड़ा सा स्पेस देना है जिससे आपका रिपोर्ट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ना। तो एक तो तरीका होगा कि सारे कंटेंट पे जाओगे, सिंगल स्पेस दोगे, और यू कैन यूज दिस फीचर, इंडेंट का फीचर यूज करोगे ना, दिस वन आ रहा है यहाँ पे देखो, आ रहा है ना, ये आ गया। बेसिकली टैब इनसाइड सेल, ठीक है, जो विजिबल नहीं होगा, इसमें आपका कैरेक्टर काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इसे रीड करना इजी हो जाता है व्यूअर को, ठीक है। इंडेंट आप इंक्रीज और भी कर सकते हो, ये लो, ठीक है। कुछ नंबर फॉर्मेट्स हैं, कॉमन्स हैं, जनरल फॉर्मेट जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं हो, हम उसको जनरल में रख, जैसा हमने टाइप किया ना बिल्कुल ऐसा ही रहा है, ठीक है। सेकेंड इज नंबर, जब भी आप किसी भी सेल को नंबर में कन्वर्ट करते हो ना नंबर फॉर्मेट में, वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स ऐड कर जाता है, ठीक है। नंबर्स में डेसिमल भी होता है एंड आपका इंटीजर भी होता है। तो जब भी आप कोई नंबर्स को करोगे ना, नंबर्स में ये देखो, नंबर्स में किया हमने, ये यहाँ पे नंबर्स में ये, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, 2 डिजिट्स में आपका डिस्प्ले हो जाएगा, 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। अगर आपको 3 डेसिमल पॉइंट 4 डेसिमल पॉइंट करना है ना,
जैसे आप नंबर में करोगे ना, इसको देखो नंबर में किया हमने, नंबर में कितना आ रहा है 1.12, ठीक है। मुझे उसके बाद के डिजिट्स भी चाहिए ना, देन वी कैन ऐड मोर डिजिट्स बाय गोइंग टू दिस मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ आ रहा है ना डेसिमल पॉइंट्स, यू कैन इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द थाउजेंड सेपरेटर? थाउजेंड सेपरेटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिजिट्स होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आपको जीरोस काउंट करने पड़ते हैं कि मुझे मिलियन में उसको करना है, 1000 करोड़ लाख कैसे रीड करना है। अगर 1000 सेपरेटर हो तो हमें रीड करना इजी हो जाता है ना। तो आप 1000 सेपरेटर लगाते हो ना, तो आपका पर 1000 वो, जैसे 1 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 लाख को यूएस में क्या बोलते हैं? यूएस में लाख तो होता नहीं है, क्या बोलते हैं? 100,000, ठीक है। सो आप 1000 सेपरेटर लगा करके उसको मिलियन या बिलियन में रीड करना इजी हो जाता है, या 1000 में रीड करना इजी हो जाता है, ठीक है। करेंसी, सो करेंसी फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट सबके पास देखो डॉलर साइन ही आ रहा है कि रुपीस भी आ रहा है? रुपीस आ रहा है, डॉलर आ रहा है? यूरो है इसमें, यहाँ पे यूरो आ रहा है आपका? अच्छा, आपका अच्छा WPS यूज कर रहे हो ना। करेंसी में क्या आ रहा है? रुपये आ रहा है, रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आप रुपीज़ में डील कर रहे हो कंपनी में, माइट भी यूरो में कंपनी यूज कर रही है या फिर डॉलर में कर रही है ना। सो बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है ना, आप उसको ना चेंज कर सकते हो। जस्ट गो टू मोर नंबर फॉर्मेट एंड यू कैन चेंज द करेंसी से। ये कॉमन क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का एग्जाम जो होता है ना बेसिक लेवल पे, ये कॉमन क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। करेंसी चेंज के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्मेट एंड करेंसी फॉर्मेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट एंड करेंसी नंबर फॉर्मेट? क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, आप बताओगे? अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में आपका वैल्यू आ रही है ना, एंड करेंसी में भी आ रही होगी, दोनों डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? विजिबल डिफरेंस क्या है? स्पेस ज़्यादा है, और इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे एग्जैक्ट, अनइवन है सारा, नॉट अनइवन है। जो आपका अकाउंटिंग है ना, उसमें करेंसी लेफ्ट मोस्ट अलाइंड होता है एंड कंटेंट राइट मोस्ट, ठीक है। एंड जो करेंसी होता है ना, उसमें आपका करेंसी साइन साथ में होता है, तो रीड करना ज़्यादा इजी कौन सा होगा अकाउंटिंग में? अगर आप अकाउंटिंग में करोगे तो अगर करेंसी साइन लेफ्ट साइड है और मल्टीपल करेंसी पे आप वर्क कर रहे हो ना, तो लेफ्ट अलाइनमेंट वाला ज़्यादा इजी आप रीड कर पाओगे, है ना। सो आप पे डिपेंड करता है आप अकाउंटिंग फॉर्मेट लेते हो करेंसी लेते हो, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम क्या होता है? 45920 नंबर दिख रहा है ना आपको, 45920, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जस्ट सेलेक्ट दैट सेल दैट इज E23, select E23, go to number format and select date। क्या है? लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट आ रहा है। शॉर्ट डेट को लो, क्या आ रहा है डेट? 29 2025 आ रहा है ना। ये नंबर डेट में कन्वर्ट हो गया, क्यों? वाईफाई कैसे वो उस नंबर को डेट में कैसे रीड कर रहा है? सितंबर वाला ऑप्शन भी आ रहा है, सितंबर ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही है ना, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है ना, बट वो नंबर को डेट में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? कैसे करता है? ये नंबर इस डेट का होगा, ये नंबर इस डेट का होगा, टोटल करके। हाँ नहीं, अरे कॉम्बिनेशन को एक अलग नंबर दे रखा नहीं ये पीएनआर नंबर नहीं है इसमें कोड हो, या फिर कोई प्रोडक्ट कोड नंबर नहीं है जिसमें डिकोडिंग और कोडिंग दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है। एक्सेल जो डेट रीड करता है ना, स्टार्ट करता है नंबर 1, आप वहां पर ना 1 टाइप करो,
जो आपने ये वाला सेल है ना यहाँ पर सिंपली टाइप करो 1, देखो कौन सी डेट आ रही है। क्लियर हुआ इसमें? हाँ? तो 1 Jan 1900 को वो नंबर 1 ट्रीट करता है, उससे पहले की डेट को रीड ही नहीं कर सकता है। सो अगर फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे ना, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है ना, उसको अगर मुझे टाइप करना हो एक्सेल में, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो 1 Jan 1900 डेट को इट विल ट्रीट एज नंबर 1। ठीक है, सो 45920 मीन्स कि इतने डेज कंप्लीट हो गए हैं 1 Jan 1900 से अब तक, उस डेट तक। ठीक है, 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, 100 में कितने होंगे? 35,000 के करीब, है ना। ये कितना आ रहा है? 45,000, है ना। सो 2025 चल रहा है, 125, तो आप ऐसे भी देखोगे तो 45,000 के करीब आएगा। ठीक है, सो कभी भी आप डेट एंटर करोगे प्री 1900 का ना, एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं देगा आपको। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेसिमल वैल्यू होती है ना, उसमें आपको मैनुअली परसेंटेज नहीं भी दोगे ना, आप सिर्फ डेसिमल वैल्यू दो, नंबर फॉर्मेट चेंज कर दो। ठीक है, साइंटिफिक फ्रैक्शन तो बता ही दिया था आपको मैंने। ठीक है, चलो लास्ट वाले सेल में देखो, वहां पर लिखा हुआ इक्वल साइन 1+3। क्या उसका रिजल्ट दे रहा है? वो इक्वल साइन लगाने के बाद कोई भी अगर नंबर की कैलकुलेशन देते हैं, उसका रिजल्ट आता है ना, आउटपुट आता है ना। इस वाले केस में तो नहीं आ रहा है। हाँ, दिख रहा है आपको कॉमा? सिस्टम पर देखो उसमें है कॉमा, है कि नहीं है? जो होगा तो दिखेगा ना उसमें फॉर्मूला बार में। टेक्स्ट वैल्यू में चेंज हो गया है। तो कोई भी अगर आप सेल पे ना, मैंने बताया था ना कि सिंगल कोट लगा के भी कर सकते हैं, और अगर उस सेल को ना आप कन्वर्ट कर दोगे टेक्स्ट सेल में ना, तो कुछ भी टाइप करोगे ना, वो टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा उसको। ये भी बहुत बार क्या होता है ना कि सर मैं इक्वल साइन तो दे रहा हूँ लेकिन वो रन नहीं कर रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पर जनरल ही आ रहा है, अभी आ रहा है ना, जनरल आ रहा है ना। सो ये टेक्स्ट वैल्यू में है, देखो इसमें ना आपको सब जगह सेम वैल्यू आ रही है। इसका सोल्यूशन क्या होता है? आप क्या करोगे ना, इसको दोबारा यहाँ पे स्पेस दे करके बैक करोगे ना, आप देखो उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो, उस सेल को ना जनरल में कन्वर्ट कर दो, उस फॉर्मूले बार पे जाओ, लास्ट में स्पेस पुट करना, स्पेस को डिलीट कर देना, एंटर प्रेस कर दो। आ रहा है? या तो स्पेस नहीं भी दोगे ना तब भी आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर जाकर के ना एंटर प्रेस करोगे ना, तब भी आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? एक्सेल का बेसिक पार्ट है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना यूजर इग्नोर करके चलता है कि ये इसका यूज क्या है, बट वो ना बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ों को कभी सीरियस लेते नहीं है। चलो यार ये तो मुझे पता ही होगा, मुझे वी लुकअप पे, एच लुकअप पे, पिवट टेबल पे, चार्ट पे, उस पर फोकस करना, ये तो सारी चीज़ें नहीं आएगी हमारे पास, है ना। चलो नेक्स्ट इज फिल सीरीज। फिल सीरीज क्या होता है कि सिंगल वैल्यू पे आप एक सीरीज को जनरेट करो। ठीक है,
सो इट इज द स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ सिलेक्टेड सेल। कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हो ना, बॉटम साइड में कोई आ रहा है आपका, एक स्क्वायर आ रहा है, कोई भी सेल को सिलेक्ट करो, देखना 4 कॉर्नर्स में से 3 कॉर्नर्स तो सेम होंगे, इस वाले कॉर्नर पे आ रहा है ना, ठीक है। एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, हम बैक स्टेज पे दोबारा जाएंगे। कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है ना, बहुत बार बोलते हैं सर मेरे में तो नहीं आ रहा है, ये बॉक्स तो नहीं आ रहा है मेरे में, ठीक है। सो बहुत बार यूजर के ना बैक स्टेज वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे ये डिजेबल हो जाता है। तो उसको इनेबल कैसे करते हैं? तो पहले क्या करते थे, जो आईटी पर्सन होता था पहले, वो करता क्या था कि ये लगता है ना सिस्टम में कुछ इशू है, उसको अनइंस्टॉल कर देता था एक्सेल को, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो ये हो जाता है ना कि एक्सेल का जो सेटअप है उसमें प्रॉब्लम हो, है ना। बट इसका सेटिंग में अगर आप डायरेक्टली करोगे ना तो देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में आप जाओगे, फॉर्मूला, ठीक है, एडवांस भी देखना कहीं पर आ रहा है, फिर हैंडलर, आ रहा है, टिक हो रखा है, उसको अनटिक करके देखना एक बार। आप रहने देना, नोट करना उसको अनटिक करोगे ना, देखना अनटिक करने के बाद वो बॉक्स जो आ रहा है ना वो हट जाएगा, ठीक है। और ये कंपनीज में आता ही है, मतलब 100 यूजर्स में किसी न किसी यूजर के पास 20 प्रॉब्लम आती रहती है। फर्स्ट टाइम तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बार आप जान जाओगे तो आप उसको इनेबल और डिजेबल कर सकते हो। सो आप यहाँ पर अगर इसको अनटिक कर देते हो ना तो देखो आप यहाँ पे देखो, अब ये ड्रैग हो रहा है यहाँ पे, आपको ड्रैग वाला देखो, ड्रैग वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा, ड्रैग ही नहीं होगा ये, है ना। आप दोबारा करोगे, इसको इनेबल, सो यू कैन, अब आ रहा है ना, प्लस का साइन बन के आ रहा है, ठीक है। सो बैक स्टेज में बहुत सारे सेटिंग्स आप चेंज करते रहोगे, बीच बीच में हम लोग आएंगे, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा फिर उसको हम ट्रबल शूट भी करते जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन यू टाइप जैन MON1, आप उसको ड्रैग करोगे ना, इट विल जनरेट मंथ नेम, आ रहा है देखो, तो ड्रैग करके देखना, जैन मंथ, जैन टैब, ठीक है। सेम फॉर MON1 करते हो या मंडे लिखते हो, ये भी सर्कुलर लिस्ट जनरेट करेगा। सर्कुलर लिस्ट कि अगर आप ट्यूसडे से स्टार्ट करते हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे सर्कुलर में आपको चलता रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सेम एज 1 और 2, इन दोनों को सिलेक्ट करना, 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना, क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल सीरीज, ठीक है। सेकेंड इंडिया वाले पे क्लिक करना एंड इसको ड्रैग करना, क्या आ रहा है, इंडिया ही आ रहा है। इंडिया और चाइना, इन दोनों को सिलेक्ट करना, थर्ड वैल्यू क्या होगी, इंडिया चाइना के बाद थर्ड वैल्यू कुछ हो सकती है, नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखना इंडिया और चाइना दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे, क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो अगर आपको 2 या 3 वैल्यूज है उसको बार बार रिपीट करना है, rather than कि उसको कॉपी करके पेस्ट ना करके ना आप ड्रैग करो, इससे टाइम आपका सेव होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रैग फॉर्मूलाज। सो आपके पास यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, J14 + K14 लिखा हुआ है ना, इसको ड्रैग करो तो आपके लिए फॉर्मूला भी ड्रैग कर देगा, ठीक है। बहुत कौन सा, ये वाला, दिस वन, इसको आप यहाँ पे ड्रैग करोगे इस तरह से, ठीक है। सबका हो रहा है ना। 15 सितंबर, इसको ड्रैग करेंगे, क्या आएगा, मुझे चाहिए 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर के बाद चाहिए 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, मतलब 1 मंथ का गैप चाहिए।
सो व्हेन यू ड्रैग दिस थिंग, तो आपका क्या करेगा, डेट को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। बट वी ऑल्सो हैव फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल इन फील्ड हैंडलर। जस्ट क्लिक हेयर, यू कैन सी ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोग के पास, देखो एक बार। फील्ड डेज, फील्ड वीक डेज, तो मुझे मंथ ऐड करना है। डोंट वांट टू चेंज द डे 15, मुझे मंथ ऐड करना है, सो यू कैन ऐड मंथ्स। देखो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कंप्लीटेड। इस कंप्लीटेड को ना मुझे यहाँ तक कॉपी एंड पेस्ट करना है। और जो फॉर्मेट है ना स्ट्रक्चर, कि एक सेल आपका हाईलाइट है, सेकंड सेल हाईलाइट नहीं है, फिर थर्ड सेल हाईलाइट है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बैंडेड, बैंडेड रोज, बैंडेड, ठीक, इसका जो टेक्निकल टर्म है। सो मुझे बैंडेड रो का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। सो व्हेन यू ड्रैग एनी वैल्यू, इट विल ऑल्सो चेंज द आउटपुट सेल फॉर्मेटिंग। तो आपको करना क्या होगा ना, यहाँ पर जाओगे तो एक ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है। सो एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से फिल 100 का ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज जोन 1, जोन 1 को ड्रैग करोगे ना, बाय डिफॉल्ट जोन 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए नहीं, मुझे जोन 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे जोन 1 को ही कॉपी करना है। सो व्हेन यू ड्रैग जोन 1 वैल्यू, ये कुछ इस तरह जनरेट करेगा। आपको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है ना, देन यू कैन यूज दिस कॉपी से। ठीक है, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे ड्रैग क्यों करना है, अगर मैं कॉर्नर साइड पर जाकर के डबल क्लिक कर दूंगा तब भी तो मेरा पॉपुलेट हो जाएगा, है ना। सो अगर आप लेफ्ट साइड में आपका डेटा है ना, व्हेन यू डू डबल क्लिक हेयर, ये देखो डबल क्लिक करते ही आपका पॉपुलेट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना कि डेटा में अगर बीच में कोई ब्लैंक रो है ना, वहां पर वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ता है, फिर से हमें इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे, और आप लोग को देख रहा, ठीक है। सो डबल क्लिक वाला मेथड जो है ना, वहां पर फेल हो जाएगा अगर डेटा में बीच में मिसिंग वैल्यू या ब्लैंक रोज है, ठीक है। लास्ट ये जैन फैब बी, इसको रीड कैसे कर रहा है, उसको जनरेट कैसे कर रहा है कि मंथ नेम में। सो एक्सेल के पास ना एक ऑप्शन है कस्टम लिस्ट का, वेरी यूजफुल फीचर, जो बेसिक यूजर पे लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, तो उसको एडवांस यूज काफ़ी है, ठीक है। सो वी हैव ऑप्शन कस्टम लिस्ट वेर यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एज ए सीरीज, और उसको कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे ईस्ट दिया हुआ है ना, ईस्ट के बाद बाकी जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मुझे सर्कुलर में चाहिए, ठीक है। कि जब भी ड्रैग करो ना किसी भी एक जोन को ड्रैग करो तो बाकी जो जोन का भी आ जाए। अभी हो रहा है, देखो अभी अगर हम ड्रैग कर रहे हैं, आप लोग में हो रहा है, देखना एक बार, नहीं हो रहा आप लोग में, आप लोग में नहीं हो रहा ना, मेरे में हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैंने कुछ एक कस्टम लिस्ट स्टोर कर रखी है जहां पर एंट्री मैंने पहले कर रखी है, ठीक है। लाइक आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, फिक्स प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में 10 प्रोडक्ट्स, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट का टाइप करना है नाम, ड्रैग करोगे बाकी प्रोडक्ट्स की भी आ जाए,
ठीक है. सो you can add values in custom list. Go to file options, general, file options advanced, ड्रैग करो नीचे, देखना कहीं कस्टम लिस्ट का आ रहा है, एडिट कस्टम लिस्ट. WPS ऑफिस में डिफरेंट आया होगा ना. अच्छा, हाँ, मेरे इंटरनेट नहीं आ रहा है. उसको प्रैक्टिस कर लेना, कुछ इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको कर लूँगा मैं. ठीक है, इसलिए मैंने टॉपिक्स भी बिल्कुल लाइट रखे हैं कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते. सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन एडिट कस्टम लिस्ट. आ रहा है यहाँ पे. सो यू कैन ऐड वैल्यूज कि आपको यहाँ पर करना क्या है ना, यहाँ पर करना क्या है आपको, एस्ट कॉमा वैल्यूज को सेपरेटेड करना है कॉमा से. ओके करोगे कस्टम लिस्ट बन जाएगा आपका, और उसको कभी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम से ना एक्सेल में आप लोग का अटेंडेंस में मेंटेन कर लूँगा. आज तो उन्होंने ले लिया, मैं एक्सेल फाइल में मेंटेन कर लूँगा सबका अटेंडेंस. तो मैं अलग से बिल्डिंग जो है आपको तो वो रेट मैं खुद भी ले लूँगा. ठीक है, आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ. ठीक है, बेसिक एक्सेल मतलब कि अभी कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक एक्सेल कंप्लीट करेंगे ना तो हम लोग लेवल 2 पे चले जाएंगे. ठीक है, आज की क्लास में कुछ डाउट्स या आपके एक्सेल रिलेटेड कोई डाउट्स हैं? ठीक है, आगे डाउट्स होंगे सो उसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, जितना ज़्यादा सीखेंगे एक्सेल ना उतने ज़्यादा डाउट्स होंगे. ठीक है, एंड आज तो कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, आप लोग इसी को कर लेना क्योंकि बहुत लोग फाइल यूज़ नहीं कर पाए. यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स क्लास में करेंगे हम लोग. केस स्टडी आपको करना होगा, घर पे करना होगा केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी की फाइल आप सेंड करोगे मुझे.